Welcome to all of you on my YouTube channel English at the rate of KZ. KZ, that is me, your instructor, your educator Kumar Gaurav. Actually, in the previous class, we have discussed about models, from where it come and what's the function of models. Just I try to remember it, remind it to you all that models, the function of models in which we have to study about. The first one, the rule number one is that models plus V1. It means we always use models plus V1. It means we always use V1 with the models. Okay. The second one, what's the second one? Models plus not for negative. Models plus not for negative. This is the use. We use not. Just for example, cannot, may not, and all that. These are the points. And the third one is that models plus is, ed, ing, these all can't be used with it. Okay? And after that, some of the things, the next rule is that models plus no preposition except used to and out to. After that, they can be used for both subjects, either singular or plural. And after that, the next rule is that they do not have any lexical meaning. They have their uses. Okay. The next one is what? They are 13 in numbers. What are they? Can you tell? No, you could not tell me about it. Actually, yes, I know. You learned it clearly. You learned it in a very good manner. Yes, may, might, can, could, will, would, used to, ought to, need, dare, and must. These are the 13 numbers which are known as models. Okay, then we have to study about from its first part the uses of may. The uses of may. Actually, in this series we have to do focus about the uses of may. Anybody can tell me about it? No one? Okay, look. The uses of may. The uses of may. Okay, here rule number 1. It is used to express for taking and giving permission. It means it is used to express for taking and giving permission. Just for example, we can write down may I come in? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? We can use like that. Here will be question marks. Here we can write down question. It's response. Response means you know what? It's reply. Okay. Here it can be used. Yes, you may. No, you may not, and all that we can use like that. Next question we can say in the same way,
May I sit here? Yes, you may sit there. And like that, we can use it. The second rule is that, just wait for your turn. Actually, before discussing these points, we have to discuss about a very important thing. We just studied in rule number 1 that it is used to express for taking and giving permission. Then there was a question. What was that? May I come in? तो इससे रिलेटेड कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को इसका मतलब समझ में आता है डायरेक्टली इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। वो क्या कि मे आई कम इन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इसका मीनिंग ये भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है क्या मैं अंदर आऊं, क्या मैं अंदर ढुकूं। सीधे अगर हमें अपनी भोजपुरी भाषा में अगर बोलना हो मैं ढुकूं तो उसके लिए होगा मे आई कम इन, इंग्लिश में सीधे बोलना होगा। ये इंग्लिश और हिंदी का बहुत ही एक अच्छा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। माइकल स्वान ने प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेस में कहा है कि कभी भी किसी एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज से ट्रांसलेट करके पढ़ाना बहुत ही गलत बात है। सबका एक अपना अलग फ्लो होता है, हम उसके थ्रू उसको नहीं बता सकते, उसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं। अब जैसे सपोज कीजिए कि किसी चीज को लेकर के हम बोलते हैं कि मे आई कमिंग, उसका मतलब होगा क्या मैं अंदर आऊं, क्या मैं ढुकूं। तो ये सब चीज थोड़ा सा अपने सिस्टमैटिक न हो करके इसका एक अलग रास्ता होता है, ठीक है ना। तो सबकी अपनी सीमा है, इसकी सीमा के अनुरूप फिर से हम उसको उसके यूज के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमारा रोल नंबर 2 है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ब्लेसिंग एंड कर्स। ब्लेसिंग एंड कर्स यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, जो अक्सर कहाँ मिलता है? ट्रक के पीछे। ट्रक के पीछे लिखा रहता है ना माँ का आशीर्वाद, ठीक है। एंड कर्स, कर्स जो पुराने जमाने में ऋषि मुनि दिया करते थे और आजकल महाभारत और रामायण में मिला कर रहा है ना। हाँ, तो यही चीज हम लोग को इसमें पढ़ना है सेकेंड नंबर रूल में। इसके एग्जाम्पल जरा हम लोग देखते हैं। इसमें होगा क्या, जैसे वो क्या होता है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद करें, आशीर्वाद दें, भगवान आपका भला करें। इस तरीके से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मे योर डॉग, मे योर डॉग डाई, मे योर डॉग डाई, आपका कुत्ता मर जाए। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। मे आवर पीएम लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट सक्सेस इन योर एग्जामिनेशन। ये सारे और सारे ब्लेसिंग के भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। फिर से दूसरा, मे योर डॉग डाई, मे माई एनिमी लूज द लॉटरी। और भी बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग कर्स या फिर बेन, बेन का मतलब भी वही होता है, BANE इक्वल टू कर्स। इट मीन्स क्या होता है? अभिशाप, जो आपको भी उतरत पता है पुराने जमाने में ऋषि मुनि दिया करते, आजकल महाभारत रामायण शो चल रहा है तो इसमें भी मिलता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अपने रूल नंबर 3 में।
इसमें किस चीज का यूज करेंगे हम लोग? अगर इतने चीज अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो काइंडली वीडियो को जरा लाइक कर दें, वीडियो को जरा लाइक कर दें और फिर इसके आगे देखेंगे। चलिए, तो रोल नंबर हमारा 3 है। इस रोल नंबर 3 में यूज करेंगे इट इज यूज टू एक्सप्रेस व्हाट, इट इज यूज टू एक्सप्रेस पर्पस, इट इज यूज टू एक्सप्रेस पर्पस, उद्देश्य को दिखाने के लिए भी इसका यूज हम लोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में वी स्टडी show that we study so that we may get knowledge, we study so that we may get knowledge. The next one, we eat so that we may stay alive. It means हम लोग खाते हैं ताकि जिंदा रह सके। इसमें एक चीज है, यहाँ पे सो दैट की जगह पर केवल दैट का भी यूज कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पे दैट का कंप्लीट मीनिंग क्या आप लोगों को पता है कितना होता है? दैट के कंप्लीट मीनिंग 5 होते हैं। वो क्या क्या? तो वो होते हैं कि, ताकि, जो, यह बात की, वह तो होता ही, यानी कि दैट मीन्स की भी हो सकता है, ताकि भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, यह बात की भी हो सकता है, और फिर हमारा वह भी हो सकता है। इतने सारे इसके मीनिंग्स होते हैं। और फिर इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको पढ़े हैं कि पर्पस को दिखाने के लिए इसका यूज करते हैं। वो क्या है कि वी स्टडी सो दैट वी मे गेट नॉलेज, वी स्टडी सो दैट वी मे गेट नॉलेज, यानी हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग अध्ययन करते हैं ताकि कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें, ठीक है ना। नेक्स्ट है वी ईट दैट, या फिर वी ईट सो दैट वी मे स्टे अलाइव, हम लोग खाते हैं ताकि जिंदा रह सकें। यहाँ पे पर्पस को दिखाता है और इसके लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, वो क्या है उसको जरा सा ध्यान देते हैं, यानी कि रूल नंबर हमारा कौन सा है? रूल नंबर 4 है। इसमें हमें लगता है आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यू गेट इट क्लियर, you do not have any problem. If you do not feel comfortable, you can comment in my box section, in the box, and tell me what's the actual feeling you get, and whatsoever you have any kind of suggestion, any kind of query, you can ask me on this particular given number. 9534737781 is my number, my mobile number. It is also my WhatsApp number too, and you can use and you can ask me any kind of problem, any kind of suggestions. If you want to give me such kind of suggestion, you do not feel comfortable over here, you can tell me about it. The next one, rule number 5. Rule number 5 is, it is used to express, it is used to express possibilities, it means संभावना को इसमें हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग यूज कर सकते हैं। अब जैसे
सॉरी ये रूल नंबर तो 4 होगा ना, ये तो रूल नंबर 4 होगा। इसमें क्या है कि इट इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, हियर वी कैन से दैट इट मे rain today, it may rain today, we can use like that. Ravi may come tomorrow। इस तरीके से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, यानी कि संभावना को दिखाने के लिए जब कभी भी हम लोग को यूज करना होगा तो उसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, हो सकता है आज बारिश हो। इसके बाद फिर रवि में कम टुमारो, हो सकता है रवि कल आए। इन दिस वे वी कैन यूज इट। एंड द नेक्स्ट वन आफ्टर दैट इन रूल नंबर 5, in rule number 5, this is very important rule in which we can write down may I have the pleasure of plus v4 plus ORW plus question marks is used to express request, what request plus invitation, request plus invitation. It means कि this structure may I have the pleasure of plus P4 plus ORW is used to express request plus invitation. It means विनती plus आमंत्रण। आप किसी को कोई एक रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और फिर उससे आप कुछ इनविटेशन भी दे रहे हैं, तो उससे रिलेटेड इसका एग्जाम्पल हम लोग अभी जस्ट देखते हैं। वो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? वो एग्जाम्पल हो सकता है हमारा कुछ इस प्रकार से, क्या है? May I have the pleasure of watching a movie with you. It means कि क्या मुझे आपके साथ एक सिनेमा देखने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिख सकते हैं May I have the pleasure of taking a dinner with you क्या मुझे आपके साथ रात का भोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? अब रात के भोजन को डिनर, चिकन डिनर मत समझ लीजिएगा। कौन सा? तो पबजी वाला। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग देखें इस रूल के थ्रू कि मे आई हैव द प्लेजर ऑफ प्लस P4 प्लस ORW इज यूज टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट प्लस इन्विटेशन, यानी कि विनती प्लस आमंत्रण के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो क्या है एग्जाम्पल में? मे आई हैव द प्लेजर ऑफ वॉचिंग अ मूवी विद यू। तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं कि हाँ, मुझे आपके साथ एक सिनेमा देखने का अवसर प्रदान हो सकता है, सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। फिर नेक्स्ट है
कि मे आई हैव द प्लेजर ऑफ टेकिंग अ डिनर विद यू, क्या मुझे आपके साथ रात का भोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। अच्छा चलिए एक जरा सा इंटरेस्टिंग बात हो जाए। अब सोचिए कभी किसी चीज को लेकर के, सपोज कि इसका एक अगला एग्जांपल हम बोलते हैं आपको, मे आई हैव द प्लेजर ऑफ टेकिंग अ कप ऑफ कॉफी विद यू। इसका हिंदी क्या होगा, क्या ध्यान से सुनिए। इसका हिंदी होगा, क्या मुझे आपके साथ एक प्याला कहवा पीने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन जब पूर्ण रूप से हम हिंदी की बात करते हैं तो थोड़ा इंग्लिश से अलग हो ही जाता है। ठीक है, देन नाउ इट्स अ टर्न फॉर द नेक्स्ट। मे का यूज जो है हमारा वो अब कंप्लीट हो गया। मे का यूज